जी अस्सलाम वालेकुम। Uh, we are learning the course of Introduction to Statistics, and today we are going to learn discrete probability distributions. The book we are consulting is Statistics for Business and Economics by Anderson and Sweeney. In the last lecture, we have we had discussed about random variables. What is a random variable? So we defined the random variable as a random variable is a numerical description of the outcome of an experiment, right? That means when we assign any numerical value to our random experiment, this is called the random experiment. Then we discussed there are two types of random variables. One is discrete random variables, right? And the other one is continuous random variable. We define discrete random variables as the random variables that may assume either finite number of values or an infinite sequence of values, right? We had discussed some of the examples in the last lecture. Then we see the examples. Then we discussed the continuous random variable and we defined continuous random variable as a random variable that may assume any numerical value in an interval or collection of intervals that is called as continuous random variable. We see some of the examples of continuous random variable. Then we solved some the exercise questions. I hope that everything is clear, right? And today we are going to discuss we have discrete probability distributions and we are actually further continuing our concept of random variable that how random variable the concept of random variable actually helps us in discrete probability distributions, right? So the probability distribution for a random variable describes how probabilities are distributed over the values of the random variable. For a discrete random variable x, the probability distribution is defined by a probability function denoted by f of x, right? The probability function provides the probability for each value of the random variable. देखें होता क्या है हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया कि रैंडम वेरिएबल वो होता है जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो उसकी जो आउटकम होती है ठीक है उसके आउटकम को जब आप न्यूमेरिकल कोई वैल्यू देते हैं तो वो आपका रैंडम वेरिएबल हो जाता है ठीक है जब आप अपने रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर प्रोबेबिलिटीज डिफाइंड करेंगे ठीक है तो वो प्रोबेबिलिटीज जिस तरीके से आप डिफाइन करेंगे अगर तो वो आपका रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो जब आप प्रोबेबिलिटीज असाइन करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो जाएगा ठीक है जिसको आप डिनोट करेंगे एफ ऑफ एक्स से स्मॉल एफ ऑफ एक्स से ठीक है और प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होता है वो हमें एक्चुअल क्या प्रोवाइड कर रहा होता है वो हमें पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड कर रहा था प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड कर रहा था कि आपके जो एक स्पेसिफिक जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है उसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज और क्या प्रोबेबिलिटीज हैं ठीक है जी एग्जांपल से समझते हैं as an illustration of a discrete random variable and its probability distribution अब हम लोग एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल देखने लगे हैं देखिएगा कि किस तरह से रैंडम वेरिएबल के ऊपर आप प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं ठीक है कंसीडर द सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एट डी कार्लो मोटर्स इन Saratoga, New York. Over the past 300 days of operation, sales data show 50 days with no automobile sold, right? 170 days with one automobile sold, 72 days with two automobiles sold,
has 42 days with 3 automobiles sold, 12 days with 4 automobiles sold and 3 days with 5 automobiles sold. ठीक है, अब ये कोई ऑटोमोबाइल स्टोर है सरटोगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। वहाँ पे डाटा देखा गया और देखा गया कि पिछले 300 दिन थे, उसमें सेल्स को देखा गया और उसमें देखा कि पिछले 300 दिन थे, उनमें से 54 डेज ऐसे थे जिनमें कोई भी ऑटोमोबाइल जो है वो सेल नहीं हुआ। 117 डेज ऐसे थे जिनमें एक ऑटोमोबाइल सेल हुआ, ठीक है। 72 डेज ऐसे थे जिनमें 2 ऑटोमोबाइल्स सेल हुए। 42 डेज आपके ऐसे थे जिनमें 3 ऑटोमोबाइल्स सोल्ड हुए और 12 डेज ऐसे थे जिनमें 4 सोल्ड हुए और 3 डेज ऐसे थे जिनमें 5 ऑटोमोबाइल सोल्ड हुए, ठीक है जी। ये डाटा हमें गिवन है, ठीक है। Suppose we consider the experiment of selecting a day of operation at the column hotels and define the random variable of interest as x is equal to the number of automobiles sold during a day. अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं, कंसिडर करते हैं एक्सपेरिमेंट में कि हम लोग जो है वो किसी एक डे के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग अपना रैंडम वेरिएबल एक्स उसको नाम देते हैं और वो डिफाइन करते हैं कि जी the number of automobiles sold during a day. From the historical data, we know x is a discrete random variable that can assume the values 0, 1, 2, 3 or 4 or 5. ठीक है, जैसे हमें पता है कि 0, 1, 2, 3, 4 जो है वो discrete random variable है. In probability notation, f of 0 provides the probability of 0 automobiles sold. F1 provides probability of 1 automobile sold and so on, ठीक है। तो जब क्योंकि प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स से डिफाइन होता है, अब एक्स जो है वो अगर आपका जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है जीरो ऑटोमोबाइल सोल्ड, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करेगा जीरो ऑटोमोबाइल सोल्ड की, ठीक है। और अगर आप एक्स वन ले लोगे तो वो आपको प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करेगा वन ऑटोमोबाइल सोल्ड की, ठीक है। इसी तरह आप एफ ऑफ टू ले लोगे तो वो आपको प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करेगा टू ऑटोमोबाइल सोल्ड की, ठीक है जी। बिकॉज हिस्टोरिकल डेटा शो 54 of 300 days with no zero automobile sold. So we assign the value 54 divided by 300. ठीक है, that is equal to 0.182 f of 0. तो आपने देखा f of 0 की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की। टोटल आपके कितने डेज थे, 300 थे। जीरो कितने दिनों में आया, कितने दिन थे ऐसे थे हमारे डाटा में जब कोई ऑटोमोबाइल सोल्ड नहीं हुआ, वो 54 थे। तो 54 डिवाइड बाई 300 किया तो 0.18 आ गया और जो 18 है वो अब जीरो की प्रोबेबिलिटी है। indicated that the probability of zero automobiles being sold during a day is 0.18. Similarly, because 117 of 300 days had one automobile sold, so we assign the value 117 divided by 300, that is 0.39 to F1, indicating that the probability of exactly one automobile being sold during a day is 0.39. Continue in this way. For the other values of the random variable, we compute the values for ff2, ff3, f4, f5, ठीक है। ठीक हो गया जी। तो ये देखें टेबल 5.3 देखें, तो आपको 5.3 टेबल में आप देखें तो x जब जीरो था उसके आगे प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.18 लिखी हुई है, ठीक है। और 0.18 किस तरह कैलकुलेट हुई वो हम लोगों ने अभी पहले सीखा, डेट इज 54 डिवाइडेड बाई 300 और 1 के आगे 0.39 है, तो वो कैसे आई। 1 जो है वो उसके एक्स जो है वो आपका नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड है, ठीक है। 1 कितने दिन ऐसे हैं जिनमें एक ऑटोमोबाइल सोल्ड हुआ, वो थे 117 डिवाइड बाई 300 किया तो 0.39 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप बाकी कंप्यूट करेंगे तो वो आप बाकी की कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि इसका आंसर 1 आएगा। वो किस तरह होता है, वो कुछ सवाल होते हैं, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। A primary advantage of defining
So primary advantage of defining a random variable and its probability distribution is that once the probability distribution is known, it is relatively easy to determine the probability of a variety of events that may be of interest to a decision maker. ठीक है, जो प्राइमरी एडवांटेज होता है रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करने का, ठीक है, डिफाइन करने का, ये होता है कि अगर जैसे ही आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन हो जाती है तो फिर बड़ी आसानी है, हो जाती है आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के हवाले से। फॉर एग्जांपल, यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर डी कार्लो मोटर्स, जैसे आप लोगों ने टेबल में देखा, वी सी दैट मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स सोल्ड ड्यूरिंग अ डे इज 1 with the probability of f1 is equal to 0.39। हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो है f1 की, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक ऑटोमोबाइल दिन में सोल्ड आउट होगा, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.39, यानी कि 40% चांस है कि अगर कोई दिन सिलेक्ट हो तो उसमें एक जो है वो ऑटोमोबाइल सोल्ड हो। In addition, there is an FF3 plus FF4 plus F5 that is 0.14 plus 0.04 plus 0.01 that is equal to 0.19 probability of selling 3 or more automobiles during a day। ठीक हो गया जी। अगर आपको पूछा जाए कि आप प्रोबेबिलिटी बताएं कि 3 या 3 से ज़्यादा ऑटोमोबाइल सोल्ड हुए तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। These probabilities plus others the decision maker may ask about provide information that can help that decision maker understand the process of selling automobiles at DeCarlo Motors। ठीक है जी। In the development of probability function for any discrete random variable, the following two conditions must be satisfied। जब भी आप probability function discrete random variable का define कर रहे होंगे, आपको ये दो कंडीशन जो है वो लाजमी लाजमी तौर पे सेटिस्फाइड करनी होगी, ठीक है। वो पहली कौन सी है, एफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है जी। और दूसरा समेशन एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। जैसे एफ एफ एक्स यहाँ पे है ना, तो इन जब सब एफ एफ एक्स को जमा करेंगे, ऐड करेंगे आप, तो इसका आंसर हमेशा जो है वो 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आप कहीं पे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये देखें, ये इसी टेबल की जो ये टेबल दिया गया है आपको 5.3, इसी टेबल को अगर हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंट करें तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे आ गया, 0 पे प्रोबेबिलिटी, फिर 1 पे प्रोबेबिलिटी, फिर 2 पे प्रोबेबिलिटी, 3 पे, 4 पे और 5 पे, ठीक है। यानी कि आप अपने जो आपने रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया है, आप उसको या तो टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप ग्राफिकली भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सेकंड फिर आ जाता है आपका डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एन, ठीक है जी, where n is equal to number of values the random variable may have। For example, suppose that for the experiment of rolling a die, we define the random variable x to be the number of dots on the upward side। For this experiment, n is equal to 6, ठीक है। Values are possible for the random variable x 1 2 3 4 5 6। Thus, the probability function for this discrete uniform variable is f of x equal to 1 over 6।
So the possible values of random variable and the associate probabilities are shown. ठीक है, तो सबकी क्या हो जाएगी 1/6 ही हो जाएगी. ठीक है जी, क्योंकि सबकी probability जो है वो सेम है. As another example, consider the random variable x with the following discrete probability distribution. x जो है वो आपको 1 2 3 4 दिया गया. The probability distribution can be defined by the formula f of x is equal to x over 10 for x is equal to 1 2 3 4 और 4. कई दफा क्या होता है, आपको ये फंक्शन दे दिया गया x over 10, f of x is equal to x over 10. ठीक है, और आपको साथ में x की वैल्यूज देगी. अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को कॉलम जो है वो खुद बनाना है. पहले जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा. जब एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी तो एक्स की जगह आप 2 रखेंगे तो 2/10 आ जाएगा. तो 3 रखेंगे तो 3/10 आ जाएगा. 4 रखेंगे 4/10 आ जाएगा. जब इनको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 2 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा. और आंसर क्या हो जाएगा, 1. तो इसका मतलब है कि ये सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. अच्छा जी, पहला क्वेश्चन देखिएगा. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज 20 25 30 35. f of x is equal to 0.20 0.15 0.25 0.40. is this probability distribution valid? explain. सबसे पहला आपने ये देखना है कि क्या ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है ये वैलिड भी है या नहीं है. वो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि हमें रूल का पता है. हमें रूल का ये पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1. दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. तो आप इनको ऐड करें जरा तो क्या बनेगा, 0.20 प्लस 0.15 दैट इज 0.35 प्लस 0.25. तो ये क्या रहेगा, 0.60 प्लस 0.4. तो इसका आंसर क्या है, 1. इसका मतलब है समेशन एफ एक्स जो है वो 1 के बराबर है. इसका मतलब है कि दिस इज अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक हो गया जी. पार्ट बी, what is the probability that x is equal to 10, x is equal to 30. तो हमने अब प्रोबेबिलिटी बतानी है x 30 के ऊपर क्या है. तो x 30 के ऊपर आप एफ ऑफ एक्स में देखें तो डेट इज इक्वल टू 0.25. ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी की पार्ट बी की क्या है, 0.25. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 25. अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 25. इसका मतलब है 25 और 25 से कम. तो 25 और 25 से कम दो वैल्यूज हैं, 25 और 20. तो इसका मतलब है 0.20 प्लस 0.215. तो इसका मतलब है डेट इज इक्वल टू 0.35. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 30. और अब आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 30. तो 30 से हमारे पास ग्रेटर जो है ओनली 1 वैल्यू है. इसमें अब आपका 30 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा. अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 कहा जाता तो फिर आपका 30 इंक्लूड होता, क्योंकि आप सिर्फ ग्रेटर देन कहा गया. तो अब इसका क्वेश्चन में आपका 30 इंक्लूड नहीं होगा. तो आपके पास क्वेश्चन में 30 से जो ग्रेटर है वो सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है, डेट इज 35 की. और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.40. ठीक होगा जी.
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। द फॉलोइंग डेटा वर कलेक्टेड वर काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग रूम्स इन यूज एट टेम्पा जनरल हॉस्पिटल ओवर अ 20-day पीरियड। अब आपको 20 दिन का डाटा दिया गया है, ठीक है। एक्स आपका क्या है, द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग रूम्स, ठीक है। ऑन 3 ऑफ द डेज ओनली वन ऑपरेटिंग रूम वाज यूज्ड। 3 डेज ऐसे हैं जब एक ऑपरेटिंग रूम यूज हुआ है, ठीक है। ऑन 5 ऑफ द डेज 2 वर यूज्ड। 5 दिन ऐसे हैं जब 2 यूज हुए हैं, 2 रूम यूज हुए हैं, ठीक है। ऑन 8 ऑफ द डेज 3 वर यूज्ड। 8 दिन आपके ऐसे हैं जब 3 रूम आपके यूज हुए हैं। एंड ऑन 4 days ऑल 4 ऑफ द हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम्स आर यूज्ड। और 4 दिन ऐसे हैं जब 4 के 4 जो ऑपरेटिंग रूम है वो यूज हुए हैं, ठीक है। ये इसी तरह है जिस तरह हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा। पहले आप लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग उनको प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे, फिर आप उनका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और फिर आप यानी कि क्वेश्चन नंबर ए देखें, पार्ट ए देखें। यूज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग रूम्स इन यूज और ऑन गिवन नंबर। तो आपके पास एक्स आपके पास गिवन है, एफ एक्स आपके पास गिवन है, आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। उसी तरह 3/20 करेंगे आपके पास, ठीक है। फिर आप 2/20 करेंगे, फिर आप 3/20 करेंगे। इस तरह करके आप करेंगे, ठीक है। सेकंड में आपको ग्राफ बनाना है, जिसमें हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल में देखा। और पार्ट सी में आपको सेटिस्फाई करनी है कंडीशंस। क्वेश्चन में रेट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, दीज बोथ और ऑन द सेम लाइंस। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी आपका बिल्कुल सेम लाइंस पे है। आप इसको ट्राई करिएगा, अगर ना समझ आई तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। The two largest cable providers are Comcast Cable Communications with 21.5 million subscribers and Time Warner Cable with 11 million subscribers. Suppose that the management of Warner Cable subjectively assesses a probability distribution for the number of new subscribers next year in the state of New York as follows. तो ये वो 1 लाख के सब्सक्राइबर की प्रोबेबिलिटी है 0.10, 2 लाख के सब्सक्राइबर की प्रोबेबिलिटी है 0.20, 3 लाख की प्रोबेबिलिटी है 0.25, 4 लाख की 0.30, 5 लाख की 0.10, 6 लाख की 0.05। पहला पार्ट, इज दिस प्रोबेबिलिटी वैलिड। हमने सबसे पहले देखना है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी वैलिड है भी कि नहीं है। तो पहले आप क्या करें, हमें पता है कि समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारी कंडीशन, ये हमारी कंडीशन है। तो आप जरा समेशन एफ ऑफ एक्स करें तो क्या आएगा, क्या आपके पास वैलिड है। 0.10 प्लस 0.20 प्लस 0.25 प्लस 0.30 प्लस 0.10 प्लस 0.05, इसको आप ऐड करेंगे तो आंसर मेरे ख्याल से 1 आ जाएगा, ठीक है। आंसर 1 है तो इसका मतलब है कि ये वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब पार्ट बी क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टाइम वार्नर विल ऑब्टेन मोर देन 400,000 न्यू सब्सक्राइबर। अब आपको क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मोर देन, यानी कि 40,000 से ज्यादा। 40,000 से ज्यादा कौन सी है, मोर देन इक्वल का होता है तो 40,000 भी शामिल होता, 400,000 भी शामिल होता। लेकिन अब क्योंकि सिर्फ मोर देन कहा गया
तो मोर देन में 500,000 है और 600,000 है, इसका मतलब है 0.10 प्लस 0.05, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.2 0.15 आ जाएगा। ठीक है, 0.15 जो है इसका आंसर है। पार्ट सी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टाइम वार्नर विल ऑब्टेन फ्यूअर देन 200,000 न्यू सब्सक्राइबर। तो आपकी कोई फ्यूअर देन है तो फ्यूअर का मतलब लेस होता है, लेस देन 200,000, तो लेस देन में सिर्फ जो है वो आपका 100 है, तो इसका मतलब है 0.10। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। A psychologist determine the number of sessions required to obtain the trust of a new patient is either 1, 2, or 3. Let x be a random variable indicated the number of sessions required to gain the patient trust. Follow probability function as proposed. अब उसने क्या किया, आपको टेबल नहीं दिया, आपको उसने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब आपने फंक्शन की शुरू करना है। डेट इज फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर 6। ठीक है, और x क्या है 1 2 3। तो आप क्या करेंगे, x1 रखेंगे तो एफ एफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/6, 2 रखेंगे तो 2/6, 3 रखेंगे तो 3/6। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैलिड। तो आप क्या करेंगे 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 6/6 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वैलिड है। ठीक है, और मेरा हाल है क्वेश्चन नंबर सी देख लें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स एट लीस्ट 2 सेशन टू गेन। जहाँ पे एटलीस्ट का मतलब आएगा, इसका मतलब है 2 या 2 से ज्यादा। तो इसका मतलब इसमें 2 भी शामिल होगा, 3 भी शामिल होगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/6 प्लस 3/6 दैट इज 5/6। ठीक है जी, होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें। द फॉलोइंग टेबल is a partial probability distribution for the MRA company's projected profits. X is equal to profit in thousands for the first year of operations. The negative value demonstrate a loss. ठीक है जी। व्हाट इज द प्रॉपर वैल्यू, ये आपको टेबल दिया गया है। तो पहला पार्ट, व्हाट इज द प्रॉपर वैल्यू फॉर F200, व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन फॉर दिस वैल्यू। अब हमें पता है कि जी समीशन एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज के हमारे पास एफ 200 की वैल्यू ही नहीं है, तो आप कैलकुलेट इस तरह करेंगे कि आप जो बाकी सारी वैल्यूज है उनको ऐड करें। ऐड करके हम पता है कि समीशन एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 होता है, और 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 में से हमारे हम माइनस करेंगे, जो बाकी सारी वैल्यूज उनको आप ऐड करेंगे तो वो मेरे ख्याल से 0.95 बन जाएगी। और अगर आप 1 में से माइनस करेंगे तो वो एफ एफ 200 जो है वो 0.05 आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरह करके आप एफ एफ 200 की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकेंडली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एम आर ए विल बी प्रॉफिटेबल। अब आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, तो आप प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे। देखिए एफ एफ एक्स -100 पे, तो इसका मतलब है कंपनी लॉस पे है। ठीक है, 0 पे ये जो है वो कंपनी प्रॉफिट तो नहीं कमा रही, नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। जब 50 पे जाएगी तो कंपनी, इसका मतलब ये है प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी एफ एफ एक्स एफ एफ 50 प्लस एफ एफ 100 प्लस एफ एफ 150 प्लस एफ एफ 200 के मतलब 0.30 प्लस 0.25 प्लस 0.10 प्लस 0.05, इनको ऐड करेंगे तो ये आपकी, इनको ऐड करेंगे तो ये मेरा हाल आपके पास आंसर आ जाएगा 0.70। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एमआरए विल मेक एट लीस्ट $100,000। तो ये देखिएगा क्या होगा, 100,000 का मतलब ये है कि 100 या उससे ज्यादा। So probability of 100, f of 100 plus 150 plus 200, that is 0.25 plus 0.10 plus 0.05,
इनको आप ऐड करेंगे, जब इनको आप ऐड करेंगे तो मेरा ख्याल है ये बन जाएगा 0.40। डेट इज योर आंसर। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस होंगे। आप लोग सभी जो हो वो इन सारे क्वेश्चंस को एक दफ़ा ज़रूर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन कोई मसला होगा, ठीक है, तो वो आप लोग जब क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग अपने ग्रुप्स में भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। अगर कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।